Good morning, student. Today our topic is present continuous tense. जैसा कि टेंस के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उस टेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्यों को हम डेवलप करते हैं, किस प्रकार के वाक्य से बनाए जाते हैं। तो जैसा कि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस मीन्स वो समस्त कार्य, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कंटिन्यूसली हमारे सराउंडिंग चलती रहती है या होती रहती है, उस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आवश्यकता होती है। ओके, यू सी देयर आर टू मेनी एक्टिविटीज़ which are going on continuously surrounding us. For example, you see the sun is shining in the sky. The sun is shining in the sky. Okay, birds are flying in the sky. Tree is growing day by day. Okay, winds is blowing, right? So there are too many activities. You know, I am standing in front of you, I am teaching all of you, you are watching my video, so there are too many continuous activities. Okay, जो हम लगातार करते हैं, जो कार्य हम कंटिन्यूसली करते हैं, उन समस्त वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बनाते हैं। हिंदी वाक्य के अंदर जो इसकी पहचान है, इट्स सो सिंपल, सो इजी। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। जैसे वह आज स्कूल जा रहा है, मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल टीवी देख रहा हूँ, वह आजकल क्रिकेट गेम खेल रहा है, वह मेरे घर आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। टू मैनी एक्टिविटीज़ विच वी डू कंटिन्यूसली इन आवर लाइफ, राइट। सो सिंपल इसकी जो आईडी है, दैट से रहा है, रही है, रहे हैं। वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे फ़ोन कर रहा है। तो रहा रही हिंदी वाक्य के लास्ट में आने पर आप इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर डेवलप करें। सिंबल्स जो इसके हैं, एज यू नो, नाउ, अब, नाउअडेज, आजकल, ओके, दिस मंथ, दिस ईयर, ओके, दिस वीक, मैं इस महीने, इस साल, ओके, इस सप्ताह ये काम कर रहा हूँ। ओके, नाउअडेज, एज यू नो, आजकल, एंड इन दिस डेज, इन दिनों, दिस मंथ। सो these are some particulars symbols which we use in this tense, right? Now, as I have told you already in my previous videos, we verb की first form plus ing form. What it designed for what? Okay, it is particularly designed for what? On those activities which running on continuously, right? So you see, what's the first structure of present continuous tense? That say, first of all, we should use as usual subject, then our am are, right? Then verb की first form plus ing form, and then object, right? So again, you see that what's the most important here? Which verb we require here? ing form we require here. Means verb की first form plus ing form we mostly use, we generally use when we make continuous sentences. Okay, so it's very simple structures. Okay, you can learn, you can make a lot of sentences, and there are too many sentences, okay, which are going on surrounding us. You see that, just imagine what's going on in garden. You see that too many children are playing there, too many old persons, okay, are running there, doing exercise there. Okay, too many peoples are doing yoga. So there are too many activities which is going on continuously. So we use first of all subject, then am are, okay, then verb की first form plus ing form, and then object. Okay, for example, वह स्कूल जा रहा है, वह he, apply is, then go में हमने क्या लगाया? ing form going, school means he is going to school, right? वह किताब पढ़ रहा है, then he is reading book. Okay, आप वीडियो देख रहे हैं, you are watching video, right? So is का जो यूज है, as you know, is we use for
he, she, it, name and singular. Am, as you know very well, for I, and are for you, we, they and plural cases we use such type of helping verb according to subject and situation we use it. Okay, so by using this structure, subject plus ijmr, then ing form, then object, you can make all those type of sentences which are running continuously, which is progressive. So that's why this name is also called present progressive tense, right? For example, my mother is cooking food, my father is reading newspaper. Okay, they are inviting me to attend his birthday party. So just like that, there are too many sentences you can develop according to situation. Okay, so please keep in mind ना, okay, कि उस तरह के वाक्य इसके लास्ट में रहा, रही वर्ड्स आते हैं, उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं, देन ईजेएमआर का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, आईएनजी फॉर्म लगा दें, और फिर क्या लगा दें, हमारा ऑब्जेक्ट लगा दें. तो इससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा और परफेक्ट बन जाएगा. अब हम आज ये भी सीख लेते हैं कि हम किस प्रकार से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड डब्ल्यूएच वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसे चेंज करते हैं. तो एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसे नेगेटिव बनाना हो तो हमें सब्जेक्ट अप्लाई करना होगा. देन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की वो है ईजेएमआर, और इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर देंगे, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज यूजुअल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, राइट. सो डेट्स ए सिंपल अप्लाई नॉट. किसी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर, अपनी सहायक क्रिया के अंदर सिंपल सा नोट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाता है. जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. वह आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज. सो अगर आपको वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है तो यू सिंपल ईजेएमआर देन आईएनजी फॉर्म, और अगर उसी वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो हम उस सहायक क्रिया के अंदर हम सिंपली नॉट अप्लाई कर देते हैं. नो, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर एज यू नो, उसे कैसे बनाते हैं, इट्स वेरी सिंपल. ओके, सिर्फ हमारी जो सहायक क्रिया है वो है हमारी सहायक क्रिया इज एम आर, राइट, इस टेंस की. जो उसे हम क्या करेंगे, हम उसे अपने सब्जेक्ट्स के पहले हम उसको अप्लाई करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ ले आए इज एम आर, राइट. तो किसी वाक्य को ऐसा टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए एज यू नो हम अपनी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं. यहाँ हमारा आ गया सब्जेक्ट. ओके, देन अगेन आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे. तो किस तरह क्वेश्चन बन गया ये, जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है. यस नो टाइप क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है. इस स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं, हमारी सहायक क्रिया को जस्ट सब्जेक्ट से बिफोर हम अप्लाई कर देते हैं. जैसे क्या आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आपको ये किसी से पूछना हो तो क्या होगा, आर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है, आर यू गोइंग टू टेम्पल. क्या वह आपके घर आ रहा है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आपको क्या अप्लाई करना है, इज ही कमिंग योर होम. क्या वह मुझे बुला रहा है, ओके, क्योंकि क्या वर्ड्स पहले है ना, तो हमें पहले क्या लाना पड़ेगा, हमारी सहायक क्रिया को ईजेएमआर में सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो क्या वह मुझे बुला रहा है, तो इसके अंदर अगेन इज ही कॉलिंग टू मी. तो इस प्रकार से हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी बना पाएंगे, राइट. नाउ आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन कि किस तरह से आप इस टेंस को बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं. आप अपने माइंड के अंदर जस्ट इमेजिन करिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन सपोज एट दिस टाइम एट रेलवे स्टेशन. तो आप सोचें कि रेलवे स्टेशन पे अभी क्या चल रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, राइट. जस्ट लाइक इन शॉपिंग मॉल व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके, इन स्कूल सपोज व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर आर टू मेनी एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स आर डूइंग, ओके, टीचर्स आर डूइंग. सो इस तरह से अपने जो माइंड है
अपने सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को सोचें और अपने किसी सिचुएशंस के अंदर उसको जोड़ के देखें कि किस तरह से वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, तो हम आसानी से इस तरह के वाक्यों को बना पाएंगे जो कंटिन्यूसली जो कार्य हो रहे हैं उसको हम बना पाएंगे। सिंपल, अगर वो अफर्मेटिव है तो उसमें ईजेएमआर देन आईएनजी फॉर्म का यूज कर लें, और अगर नेगेटिव है तो उसमें ईजेएमआर के बाद नॉट देन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लें। और अगर आपको एस नो टाइप क्वेश्चंस बनाना है तो उसके पहले हम क्या कर लें, ईजेएमआर को सब्जेक्ट से पहले अप्लाई कर लें। और अब लास्ट जो WH वर्ड क्वेश्चन है आपका, एज यू नो लास्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम कैसे बनाते हैं उसे भी हम सीख लेते हैं। जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसके पहले सिर्फ हम क्या लगा दें, WH वर्ड लगा दें। ओके, राइट्स वेरी सिंपल। देन सेम स्ट्रक्चर को हम इसके आगे कॉपी कर लेते हैं, यानी मीन्स ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट देन आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, राइट। यू सी दैट ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है WH वर्ड्स। और यू नो वेरी वेल कि WH वर्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। हम WH वर्ड जो फैमिली हमारी वाट, वाई, वैन, विच, वेयर, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो हम यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो उसको हम WH वर्ड से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे WH वर्ड, वेयर। ओके, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इज, और सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। ओके, और हमारी आईएनजी फॉर्म क्या आ गई, गोइंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, राइट। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना कैसे सीखा, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस टेंस के अंदर कि हम एक सेंटेंस को, एक स्ट्रक्चर्स को नेगेटिव में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपल नोट लगाकर। उसे एस नो टाइप में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपल हमारी सहायक क्रिया को उस सब्जेक्ट से आगे लाकर। और WH वर्ड कैसे बना सकते हैं, WH वर्ड लिखने के बाद हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम अगर कॉपी कर देते हैं तो हमारा ये बन जाता है WH वर्ड स्ट्रक्चर, राइट। सो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्यों को हम बना सकते हैं या बनाए जाते हैं, आपने अच्छे ढंग से सीखा। वो समस्त कार्य जो इस समय संसार के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर, सराउंडिंग और हमारे जो आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ पर जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जो चल रहा है, उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो है आईएनजी फॉर्म, राइट। और आईएनजी लगाते समय आप देखें कि अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में ई वर्ड आता है, ई, जैसे राइट, WRITE, राइट, तो उस ई को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर हम उसके अंदर आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हैं। या प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। और मैंने आपको जो सिचुएशन दी है वो ये दी है कि आप सोचें कि आज जैसे मेरे फ्रेंड के घर पे क्या हो रहा है, ओके, वो अगर बर्थडे बना रहा है तो कैसे बना रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पर, ओके। अभी इस समय सपोज बस स्टैंड के ऊपर क्या सीन है, वहाँ क्या चल रहा है। तो इस तरह से जो कंटिन्यूसली जो एक्शंस जहाँ पर हो रहे हैं उसको हम सोचें माइंड के अंदर उसको, और उस सिचुएशन को इमेज कर कर हम बहुत सारे सेंटेंस डेवलप करें। तो इस प्रकार से आप आसानी से सीख जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और आसानी से हम वाक्यों को बना पाएंगे। अगेन तो इसके अंदर, और हमने आपको ये भी सिखाया इसके अंदर कि हम कैसे एक सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव में, यस नो टाइप में और WH वर्ड क्वेश्चंस में डेवलप कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस प्रकार से मैक्सिमम सेंटेंस को बनाएं, राइट। तो एक सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस है, आप आजकल किताब पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस बना यू आर रीडिंग बुक नाउअडेज, राइट। हम ये भी कह सकते हैं नाउअडेज यू आर रीडिंग बुक्स। आप आजकल किताब नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग बुक नाउअडेज, ये नेगेटिव बन गया। और अगर आपको सवाल पूछना हो क्या आप आजकल किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, आर यू रीडिंग बुक नाउअडेज। और आपको ये पूछना हो कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, व्हाट आर यू रीडिंग नाउअडेज। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को हम सेलेक्ट करें और उसे फिर इस तरह से हम नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH वर्ड में उसको मॉडिफाई करें और इस तरह से हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि सेंटेंस बनाना आपके लिए आना बहुत मस्ट है कि विदाउट सेंटेंस यू कांट स्पीक प्रॉपरली, यू कांट राइट प्रॉपरली एंड यू कांट रीड प्रॉपरली। सो आई थिंक आज के बाद ये टेंस आपको हमेशा याद रहने वाला है
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जैसा कि नाम से क्लियर है, वो समस्त कंटिन्यूस कार्य जो इस समय प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में चल रहे हैं, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट लाना है और फिर हमें ईजेएमआर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है और फिर कौन सी फॉर्म यूज करनी है? आईएनजी फॉर्म, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया है कि वो सभी समस्त कार्य, समस्त एक्टिविटीज जो कंटिन्यूसली होती है उसको शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।